Wow, that was quick. So it's pretty much clear. The topic we are going to cover is speed. We will try to understand the things in a very simple and easy way. So let's start. Speed, in simple words, you can also say rate of motion. What do you mean by rate? With respect to time. As we know that some objects move very fast and some objects move very slow or slow. So what does it means? What do you mean by fast or slow? सिंपल वे में हम फास्ट का क्या मतलब बोलते हैं? इफ़ वी ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस एंड वी कवर दैट डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, then we say that we will doing fast, we are going fast. And if we are covering that distance for a much larger time, then we'll say object is going slow. So we can define, or you can say speed, that the physical quantity depends upon distance and time. So अब यहाँ पे आप definition मैंने लिखी हुई है, just go through it. Distance traveled by a moving object per unit time is expressed by a quantity known as speed. In other words, you can also say distance traveled per unit time means what? अब पर यूनिट टाइम मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सपोज आपने 1 आवर लिया है या 1 मिनट लिया है या 1 सेकेंड लिया है, तो वो ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस को 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा है या 1 आवर में कितना ट्रैवल कर रहा है, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्टेंस बोलते हैं. और स्पीड मीन्स rate of motion. Rate of motion means the distance traveled by object in a particular time interval. That will give us speed. Now next is its units. Now look at the formula. Speed is equal to distance upon time, and distance की unit SI unit, as I have told you earlier, it is meter, and standard unit of time is second. So standard unit of speed is meter per second. When you will solve numericals, you have to convert kilometer per hour into meter per second. In upcoming videos, we'll try to convert, we'll learn how we can convert kilometer per hour into meter per second. So next is, next I have given one example, and you have to calculate speed of that car. Read the example. A car traveled distance of 100 km in 2 hours. Here distance is given and as well as time is given. Distance is 100 km and time is 2 hours. So you can easily calculate with the help of formula of speed. What is it? You will get 100 upon 2, that is 50 km per hour. It is very necessary to write units along with the digits which you have calculated. So we'll discuss now next average speed. In real life आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, वेदर कार से या एक्टिवा से या एनी व्हीकल से, तो हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है. स्पीड कांस्टेंट नहीं होने का क्या मतलब है? वी आर ट्रैवलिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. हमारा वहाँ पे ना ही डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और ना ही टाइम कांस्टेंट होता है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, if you want to calculate speed, that gives us average speed. Let's suppose there are 2 points A and B, and you have to travel from A to B, which is 50 km. If and you have traveled that much distance, जो 50 km है, आपने उसको 3-4 parts में travel किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 25 किलोमीटर को आपने सपोज 5 आवर में कंप्लीट किया है, नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स को 1 आवर में कंप्लीट किया है. तो व्हाट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, यू हैव टू राइट डाउन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी वॉज 50, तो आप वहाँ पे 50 लिखोगे, एंड टोटल टाइम, जितना भी टाइम आपको लगा है फ्रॉम ए टू बी पहुँचने में, आप टोटल टाइम उसको ऐड करोगे, and then you will divide, you will get average speed. In real life we calculate average speed. Now next is one example is given, just read it thoroughly.
16 an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. There are two intervals, दो यहाँ पे distance है. First 16 meters को 4 seconds में travel कर रहा है and next 16 meter को 2 seconds में travel कर रहा है. तो what is the average speed of the object? Again you have to write formula and simply you will add all the distance covered, all length between two points. जो आपका यहाँ पे 16 + 16 32 मीटर है and total time taken is 4 + 2 that is 6 second. Then you will get 5.33 meter per second because here जो आपके इस न्यूमेरिकल में है डिस्टेंस मीटर में है एंड टाइम सेकंड में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज आप कन्वर्ट इसको कर सकते हो. अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता फॉर स्टैंडर्ड यूनिट. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, यूनिफॉर्म मीन्स होता है सेम या जो भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और कांस्टेंट का भी यही सेम मीनिंग है कि फिक्स्ड जो भी वैल्यू है, जो भी क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. ना यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स आप एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो और वो स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही है. नाउ थिंक अबाउट इट, अगर हम रियल लाइफ में ऐसे ट्रैवल करते हैं जहाँ पे हमारी स्पीड चेंज नहीं होती है. सो just read the definition of if a moving body cover equal distance in equal interval of time, then the speed of body is said to be uniform speed. This is ideal case, ये हमारे real life में possible नहीं हो पाता है बिकॉज हम डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रैवल करते हैं. रोड्स पे कभी ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रैवल करना पड़ता है. देयर आर सो मच सर्कमस्टांसेस जिसमें हम ट्रैवल बहुत टाइम लगता है या कभी हम जल्दी कर लेते हैं. तो यूनिफॉर्म स्पीड रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. एंड यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? जब आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हो. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स जस्ट अपोजिट टू यूनिफॉर्म स्पीड. जब आप डिफरेंट डिस्टेंसेस को डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहे हो और कोई भी क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है, ना ही डिस्टेंस फिक्स्ड है और ना ही आपका टाइम फिक्स्ड है, तो उस टाइप जब आप स्पीड कैलकुलेट करोगे उस ऑब्जेक्ट की, दैट स्पीड इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल मीन्स जो चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कभी आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, कभी 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, कभी 5, कभी 10. तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मे बी इट इज़ पॉसिबल को आप हर एक घंटे में आप डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हो, या ये भी पॉसिबल है कि डिफरेंट सेम डिस्टेंसेस को आप डिफरेंट टाइम इंटरवल में और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहे हो. तो उस टाइप की स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं. जैसे कि आप सपोज डेली स्कूल से घर वापस आते हो या घर से स्कूल जाते हो, तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि आप डेली 5 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट नहीं, ओनली 5 मिनट में आप ट्रैवल कर रहे हो डेली. इट इज़ नॉट पॉसिबल. कभी आपको कम भी टाइम लगता होगा, कभी ज़्यादा भी टाइम लगता होगा. एंड स्पीड डिपेंड करेगी आपकी डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में ट्रैवल किया हुआ है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ नेक्स्ट इज़ इंस्टैंटेनियस स्पीड. इंस्टेंट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सेकंड में, कि जब आपने स्पीड वाले नेडल पे देखा, स्पीडोमीटर लगा होता है हर एक डिवाइस में, हर एक व्हीकल में, जो भी व्हीकल्स ट्रैवलिंग जिससे हम ट्रैवल करते हैं, कि हमारे व्हीकल की कन्वेंस की क्या स्पीड है. एट पर्टिकुलर इंस्टेंट बताता है वो टाइम, वो एवरेज स्पीड नहीं बताता. वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड मीन्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर सेकंड पे वो स्पीड बताता है. तो उस टाइम जो स्पीड आती है उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड. नाउ नेक्स्ट इज स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इज दैट डिवाइस विच कैन मेजर इंस्टैंटेनियस स्पीड. जो भी मैंने पीछे बताया कि हर एक व्हीकल और कन्वेंस में ये लगा होता है, सो दैट कि वी कैन ईजिली जज आर स्पीड, कि हमारी स्पीड ज़्यादा है या फिर हम स्लो जा रहे हैं, या फिर एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करते हैं हम जनरली. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, and in next video we'll discuss velocity, types of velocity and its SI unit. So till then, good luck, keep shining.